شروع کرتا ہوں یشوع ہامشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں خدمت کرنے والے بہن بھائی اور انٹرنیشنل کلیسیا کو سلام، شالوم، جے مسیحا کی۔ میرے عزیزو، دوستو، ساتھیو، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ حادثات کیوں ہوتے ہیں، خاص طور پہ ہائی وے پر حادثات کیوں ہوتے ہیں، اس کی بڑی وجہ کیا ہے اور اس وجہ سے نکلنے کے لیے راستہ کیا ہے۔ پہلی بات کہ دھیان جو ہے اس کا ایک خاص اثر ہے انسانی دماغ پر۔ یہ انسان جب کسی بات کو بار بار دہراتا ہے، اس کی گردان کرتا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ریڑھ بن جاتی ہے۔ یہ اسی گردان کے اندر اسی چیز کو جب بار بار ریپیٹ کرتا ہے، دہراتا ہے، تو اسی میں خود ہی ہپناٹائز ہو جاتا ہے۔ بھلے وہ بائبل کی باتیں ہوں، بھلے وہ کوئی الفاظ ہوں، کسی طرح سے بھی وہ اس کی گرپ میں آ جاتا ہے۔ ایسی گرپ میں آتا ہے جیسے آپ دیکھو کہ کئی لوگوں نے کچھ کپڑوں پر اپنا بھروسہ رکھا ہے، وہ اس کی گرپ میں ہے، اور وہ کہتے ہیں اگر یہ میں کپڑے پہن لوں تو میرا کام بن جاتا ہے۔ کوئی کہتے ہیں اگر یہ میرا جو پین ہے، اگر میں اس کے ذریعے سے سائن کروں تو میرا کانٹریکٹ پاس ہو جاتا ہے۔ کئی یہ کہتے ہیں کہ اگر صبح صبح میں فلاں بندے کو ملوں، یا فلاں بچے کو ملوں، یا فلاں پادری کو ملوں، یا فلاں ایریا سے گزروں تو میرا کام ہو جاتا ہے۔ تو کسی نہ کسی کھونٹی پہ ہر شخص نے اپنے آپ کو ٹانگا ہوا ہے، اور اسی سے ہی اس کا کام بنتا نظر آتا ہے۔ کسی حد تک اس کی جو جڑیں ہیں، اس کے روٹ جو ہیں، یہ حقیقت کے قریب ہیں۔ یسوع مسیح نے گتسمنی باغ میں دعا کی اور بار بار دعا کی کہ باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔ بعض نام نہاد پادری اور بغیر استادے کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کہتا تھا کہ وہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔ وہ پیالہ جو تھا وہ ہم انسانوں کے گناہ ہیں، اور وہ چاہتا تھا ٹل جائے انسانی طور پر۔ لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس سے بڑا کفر کوئی ہے نہیں جو پادری صاحبان قیامت المسیح کے دن، ایسٹر کے دن، عید فصح کے دن چرچز میں خوب زور کے ساتھ، روب کے ساتھ، جوش کے ساتھ سنا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کو اس بات کا علم ہے کہ یسوع نجات دینے کے لیے آیا، اور یسوع خدا کا برہ ہے۔ یسوع وہ برہ ہے جس کی گواہی یوحنا دے رہا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔
अब ये पादरी, नामनहाद पादरी, बगैर उस्तादे पादरी, पखंडी किसी जमाने के, कह रहे हैं कि यस्सु उस प्याला को पीने से भाग रहा है, दुआएं मांग रहा है कि ये प्याला मुझसे टल जाए, जिसका मतलब है कि यस्सु मसीह खुदा का प्यारा नहीं है, जबकि बार बार कहा गया ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं खुश हूं। ऐसे शख्स से, ऐसे बेटे से खुदा खुश है जो काम उसको करने दिया गया, अब वो उस काम से भाग रहा है। और ऐसे लग रहा है कि बकौल इन पखंडी पादरियों के कि वो रूमी उसे जबरदस्ती सलीब दे रहे हैं। वो भागना चाहता है, शागिर्द भाग गए, यीशु भागना चाहता है और रूमियों ने उसे पकड़ लिया और उसको सलीब दिया। इससे बड़ी बदअखलाकी, ब्लास्फेमी, मुखालफे मसीह होने का सबूत और क्या मिल सकता है? और ये तौहीने मसीह कौन कर रहे हैं? बेउस्तादे, पखंडी, स्कूलों से भागे हुए, सेमिनरियों के करीब से भी नहीं गुजरे, बगैर किसी काम के ऐसे शख्स जो आज चर्चेस पे हाकम बने बैठे हैं, ये मसीह की तौहीन कर रहे हैं। जबकि वहां पर बार बार ये कहा जा रहा है, शागिर्दों को आगाही दी जा रही है कि ये प्याला टल जाए, उठो दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। क्योंकि वो प्याला था कि रूमी उस गतसमनी बाग में उस रात करीब था कि यीशु को इनकाउंटर कर देते, जिसका सबूत नजर आता है कि पतरस ने वो तलवार चलाई और उसके मद्दे मुकाबल रूमियों ने तलवारें निकाली और यीशु मसीह ने कहा, तुम किसको ढूंढते हो? यीशु मसीह सामने आ गया और उसके अंदर इतनी पावर थी कि वो कहता है कि मैं हूं। उन्होंने कहा, यीशु नासरी को ढूंढते हैं? तो यीशु ने आगे से कहा, मैं हूं, और वो गिर पड़े। जिसके मुंह के अल्फाज से, जिसकी शख्सियत से रूमी हुकूमत कांप रही है, उसके मुंह के अल्फाज से उसके फौजी गिर रहे हैं, वो भाग रहा है और वो दुआ कर रहा है कि मुझसे ये प्याला टल जाए। शर्म करो और खुदा से माफी मांगो, ये जो कुफर बका जा रहा है, क्योंकि ये अबलीसी बात है कि मसीह की कुर्बानी वहां पर सलीब पे ना हो, वो इनकाउंटर किया जाएगा गतसमनी में। तो मसीह कह रहा है कि ऐ बाप, हो सके तो ये प्याला टल जाए कि आज यहां शागिर्द भी मर जाएंगे और ये मुझे मेरे टारगेट तक नहीं पहुंचने देंगे। जब कोई टारगेट हो, किसी पर फोकस हो जाए, तो वो उसके लिए कामयाबी भी बनता है और नाकामी भी बनता है। मसीह के लिए और हम इंसानों के लिए वो कामयाबी हुई कि मसीह अपने टारगेट पे पहुंच गया। उसने सलीब पर चढ़कर कहा, ऐ बाप, मैं अपना रूह तेरे हाथ में सौंपता हूं, क्योंकि मसीह ने कहा था कि मुझे अपना रूह देने और फिर ले लेने का इख्तियार है। देता वही है जो कुल कायनात को जिसने बनाया, लेता वही है जो कुल कायनात के सारे निजाम को वापस ले लेता है। अजराम फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे, ये सब कुछ नया बन जाएगा। देख, मैं सब कुछ नया बना देता हूं। वही है जो देता है, वही है जो फिर लेता है, वही जिंदा करता है। क्योंकि पतरस इस बात को जानता था,
तुम्मा इस बात को जानता था, इसीलिए तुम्मा ने एकदम से कहा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, मरियम को आप देखो, लाजर की बहन को, मार्था को देखो। जब उनके साथ यीशु बात कर रहा है तो उनको कहता है कि क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, यानी मारने वाला और फिर जिंदा करने वाला मैं हूं। मैं ही हूं जब बुला लेता हूं, और मैं ही हूं जो भेजता हूं। तो आप किस रोड पे हो, किस टारगेट पे हो, किस मंजिल पे हो? यूरोप में जो सीधे रोड हैं, रात के वक्त जब गाड़ियां चलती हैं, खास तौर पे 12 बजे से 3 बजे के टाइम पे, ये जो तीसरा पहर है, तो इस तीसरे पहर में बड़े हादसे होते हैं। उसकी वजह, मैं अक्सर अपने बच्चों के साथ जब जाता हूं, हम दूसरे शहरों में जाते हैं, तो इबादत की या रिश्तेदारों को मिले वापस आते हुए अक्सर ये टाइम हो जाता है, और मैं बात करता रहता हूं अपने बेटे के साथ या अपने दामाद के साथ, और फिर हम कोई ना कोई गीत सुनते हैं, फिर गीत पे बात करते रहते हैं, शेर व शायरी पे बात करते हैं, ताकि तवज्जो डिवाइड होती रहे, एक जगह पे स्टक ना हो जाए। फिर मैं उनको बार बार कहता रहता हूं कि जो आगे गाड़ी जा रही है उसकी जो लाल बत्तियां हैं उस पर ध्यान टिका ना देना, क्योंकि वो 2 लाल बत्तियां जो है वो आपकी दोनों आंखों के साथ दिमाग को ग्रिप कर लेंगी, आप हिप्नोटाइज हो जाएंगे और गाड़ी स्टक हो जाएगी उसके पीछे, आप इधर उधर मोड़ नहीं सकोगे। इसलिए तवज्जो बदलते रहो, कभी लेफ्ट साइड पे देखो, कभी राइट साइड पे देखो, कभी मीटर की तरफ देखो, कभी टेपर कार्ड की तरफ देखो, कभी सीट की तरफ देखो, हिलते रहो, कभी पानी पी लो। खास तौर पे रात को 12 से 3 बजे तक पूरा सन्नाटा होता है, अंधेरा होता है, और बिल्कुल कोई आवाज नहीं, कोई ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं, रोड सुनसान है, और स्पीड 120 है, और जर्मनी में तो इससे भी ज्यादा स्पीड है, अमेरिका में भी कोई स्पीड लिमिट नहीं, जितना आप कंट्रोल कर सकते हो भगाओ गाड़ी को। और जब सीधा रोड हो और सीधे रोड के दरमियान रोड लाइन हो, तो उस लाइन के ऊपर जब ड्राइवर की आंखें टिक जाती हैं और वो उस पर स्टक हो जाता है, और स्पीड भी एक ही है, बढ़ गई है स्पीड, जैसे क्रूज कंट्रोल होता है उसी तरह स्पीड उस पर कंट्रोल हो चुकी है, तो फिर मुश्किल होता है उससे निकलना, और दिमाग और पूरे असाब और पूरा सिस्टम ये बिल्कुल स्टक हो जाता है। इसलिए इस टाइम पर होशियार रहने की जरूरत है। और इसी तरह ये जिंदगी की जो सड़क है, ये जिंदगी का रोड जो है, बाज दफा हम कई ऐसी चीजों पर स्टक हो चुके हैं, पता है कि इसके स्टक होने के सबब से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। कितने लोग हैं, जैसे मैं अक्सर पादरियों की बात करता हूं, सबकी नहीं बात करता, उनकी जिनका कोई उस्ताद नहीं, उनकी जो किसी अदारे से तालीम याफ्ता नहीं, उनकी जो पखंडी हैं, जो ड्रामे कर करके लोगों को लूट रहे हैं, उनकी जो लोगों के सामने हीरो बने हुए हैं, जिनको बाइबल पढ़ने भी नहीं आती, जिनको सही तौर पे उनके प्रोनाउंसिएशन का भी नहीं पता, बाइबल की किताबों का नहीं पता, उनकी बात कर रहा हूं कि उनको ये नहीं पता, क्योंकि ऐसा हाल है पाकिस्तान में कि बगैर उपलाइडिंग के, बगैर ट्रेनिंग के, बगैर डिग्री के, बगैर डिप्लोमे के जहाज भी चला रहे हैं, डॉक्टर भी क्लिनिक चला रहे हैं, ड्राइवर भी गाड़ियां चला रहे हैं,
और जो आपको पता है, मैं क्या गिन गिन के बताऊं, आपको पता है हुक्मरान कैसे आए, लीडर कैसे बनते हैं बगैर किसी तैयारी के, और उनको ये नहीं पता कि जिस रोड पर, जिस डगर पर, जिस रास्ते पर, जिस लाइन पर हम गाड़ी दौड़ा रहे हैं, हमारे पीछे जो लोग बैठे हैं, जो कलीसिया है, जो अवाम है, जो क्लास है, जिनके हम जिम्मेदार हैं, उनका क्या बनेगा। वो सादा जो कहते हैं हम तो डूबे सनम तुमको भी ले डूबेंगे, ये वो लोग हैं, इन्होंने खुद तो जाना ही जाना है। एक दिन मैं एक प्रोग्राम में देख रहा था कि एक वो बहुत बड़ा पुराना कोई दरिया है अमेज़न का, तो उसमें बहुत सारे मगरमच्छ हैं। तो भेड़ें फिरती फिरती उस तरफ को निकल आई। अब सामने नजर आ रहा है उनको कि मगरमच्छ बैठे हैं, और एक भेड़ उनके आगे आगे जाके तो उसमें गिर गई। अब दूसरी भी गिर रही है, उनको नजर भी आ रहा है कि वो गिर रही है और मगरमच्छ उनको पकड़ रहे हैं, फिर भी छलांगे लगाती जा रही है। इसको कहते हैं भेड़ चाल। फिर एक दफा मैंने देखा कि एक चरवाहा था, एक एरिया से गुजरा और उस एरिया में आग लगी हुई थी। चरवाहा उस आग की पट्टी को फलांग कर, छलांग लगाकर भाग गया। अब भेड़ें उसके पीछे पीछे भाग रही हैं और सब की सब उस आग में गिर रही हैं। जब वो चरवाहा भागा उस वक्त आग थोड़ी थी, लेकिन जब आग मच गई, उसके शोले सर चढ़ गए, तो भेड़ें उसी में छलांगे मार रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारा लीडर इधर से गया है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, कलीसिया इस बात पर जागे, सोचे, इनसे सवाल करो, इनसे पूछो कि ये तो स्टक हो गए हैं लालच की पट्टी पर, खामोश रोड पर, ओवर स्पीड पर। ये तो स्टक हो चुके हैं, हेप्राटाइज हो चुके हैं। अब इनको जगाओ भी तो निकल नहीं सकते, क्योंकि इनको इज्जत की बू ने, इज्जत की मैं ने, इज्जत की शराब ने इस तरह का नशा चढ़ा दिया है, पैसे का इतना नशा चढ़ गया है। इनको पता है कि इनकी फैमिलियां बर्बाद हो रही हैं, इनको पता है कि इनके बच्चे सरकश हैं, इनको पता है कि अवाम कितनी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, लेकिन फिर भी पैसे के लालच में, इज्जत की लालच में एक ही रोड पर स्टक हो गए हैं। और ये टाइम कौन सा है? तीसरे पैर का। अब चेंज होने वाला है। चौथा पैर दिन निकल पड़ता है। चौथा पैर दुआ का होता है, चौथा पैर जागने का होता है, चौथा पैर दुआ का है, तहज्जुद का है, नमाज का है, खुदा की कुर्बत का है, खुदा की इज्जत का है। यीशु मसीह सुबह सवेरे दुआ करने के लिए वराने में गया। दाऊद सुबह सवेरे उठ के गीत गाता है, दुआ करता है। खुदा के लोग सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग 3 से 6 बजे तक का टाइम दुआ का टाइम है, और वही दुआ करेगा जो इन मामलों में फंसा नहीं, वरना दुआ तक वो पहुंचते ही नहीं। उनकी दुआ हो जाती है, उनकी दुआ पड़ी जाती है कि वो गए, क्योंकि उस रोड ने उनको बांध लिया। इसीलिए रोड में जिग जैग बनाते हैं ताकि लोग जागते रहें। इसी वजह से लोग बार बार कुछ ना कुछ दोहराते रहते हैं, विरद करते हैं, मंत्र करते हैं, पढ़ते रहते हैं, वो उसमें फंस जाते हैं। उसी को तो जादू कहते हैं। जादू कोई खास डीमंस नॉलेज नहीं है, जादू वही है जिसमें आप फंस जाते हैं। भले रोड पे हो, भले किसी जगह पे हो, किसी चीज की पावर आपको ग्रिप कर ले, उसको जादू कहते हैं। इसलिए रोड टेढ़े मेढ़े बनाते हैं ताकि ड्राइवर जागते रहें।
आपको भी मैं कहता हूं, प्लीज जाग जाइए। जो स्टक हो गए हैं